السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. امام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس من پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرو ارشاد کہ بے شک سو شخص یس تہ ڈران تے دھمکانے آمت اس وہ حقیقت میں شیطان ہی تھا جو انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا تھا. اور ام پتہ آیا مومنن تلقین کرنے اور تمن آئی وصیت کرنے کہ آپ بس اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے رکھو. ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مومن حقیقت میں صرف اللہ سے ہی ڈرنے والا ہوتا ہے. ام پتہ آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت خطاب کرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کیا چھو پنن دل مبارک رنجیدہ کرن یمن کافرن ہند خاطر کہ آپ ان کو کفر میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل مبارک کو کیوں رنجیدہ کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ کا اور اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پختہ ارادہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی یمن آسن اللہ تبارک و تعالیٰ دین یمن آخرت مز کانٛہہ تہِ حصہ. اور اس آیت کی تفسیر میں نے بہت سے احادیث آپ کے سامنے کوٹ کیے تھے کہ مومنس متعلق کیا یا مومن کیا زن کیا ونن اس کا کیا وطیرہ یا اس کا کیا اس کے نظر میں دنیا کی کیا حیثیت ہوتی ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ مضمون یعنی منافقین ہند زن کیا ونن خطاب تمن کنت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اشتروا الکفر بے شک جن لوگوں نے کفر کو خرید لیا یعنی بے شک تم لوگ یہ زن کفر مل ہو کم بدل بال ایمان ایمان کے بدلے لن یضر اللہ شیئا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے. یہ خطاب اصل میں کن سے ہے؟ منافقین سے ہے. منافقین یم زن اس یہ تو مسلمانوں میں بالکل رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے اور دعویٰ بھی ان کا یہ تھا کہ ہم کیا قبول کر چکے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں. مگر یم ساتن اسلامس پہ کڑی یہ زن آزمائش اس یا یم ساتن زن کوئی کٹھن وقت آتا تھا جیسے عہد کے موقع پر تو یہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے کن سے؟ مسلمانوں سے. حالانکہ ان کے سامنے آپشن تھا کہ یم ہکین یم مومنن کنت وچھن یہ ان کے ساتھ بالکل زندگی بسر کرتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ ان کی زندگی کیسی صاف پاکیزہ ہے اور یہ کیسے اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمان دبر وشتہ یمن منافقن کنت یہ کتنے بیوقوف ہیں اور یہ کتنے پرلے درجے کے احمق ہیں کہ یہ ایمان کے بدلے کس کو خریدتے ہیں؟ کفر کو خریدتے ہیں. حالانکہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایمان کا سودا جو ہے یہ نفع کا سودا ہے. ایمان کا سودا جو ہے اسی میں اصل میں حقیقی کامیابی ہے. مگر اس کے باوجود بھی حقیر دنیائی مفادات کے لیے یہ کفر کو یہ ایمان کو چھوڑ کر کیا خریدتے ہیں؟ کفر خریدتے ہیں. یہ بالکل یہ مثال ایک انسان کے پاس دو آپشنز ہیں. امس برونٹھ حلال طیب رزق یا ماز
और अमिस ब्रोट मरा हुआ बकरा और मरा हुआ ये जन गोश्त भी है और जिससे बदबू आ रही है। अब यमिस तबीयत सही तो सालिम आस बिल्कुल क्या वना जिसकी तबीयत जो है वो खुशगवार तबीयत हो, वो किसको इख्तियार करेगा? कुदरती तौर पर वो ताज़ा और हलाल गोश्त को पसंद करेगा। मगर सुकुता अहमक आस और सुकुता परले दर्जे का बेवकूफ आस जो इस हलाल और खुशबूदार गोश्त को छोड़कर इस बदबूदार गोश्त को पकड़ेगा। यमन मुनाफिकन हिंद मिसाल बिल्कुल ये हिश। यमन ब्रोट ईमान वाजिह गोमुत, यमन ब्रोट साहब साहबन हिंद जिंदगी, यमन ब्रोट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमून ब्रोट। मगर इसके बावजूद भी इन्होंने ताज़ा और इस खूबसूरत इस्लाम और दीन को छोड़कर कुफर की खबासत और कुफर की बदबू अपने गले में डाल दी। अल्लाह ताला फरमान, ये लोग जिन्होंने ईमान के बदले कुफर को खरीद लिया, लन यज़ुरुल्लाह शैआ, ये अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बल्कि ये असल में किसका नुकसान कर रहे हैं? ये अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी इस सौदा के बदले युसिमो ये सौदा कोर, इसका नफा तो क्या? इसका नफा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको कयामत के दिन क्या देगा? दर्दनाक अजाब। अल्लाह ताला फरमान, अच्छा इसमें हमारे लिए भी एक तरबियत है। अत आयतस में सारे खतर ति तरबियत। कुन सातन दुनियावी हकीर मफादातों खतर दुनिया का मामूली फायदे बासन आस, उस वक्त हम दुनिया के फायदे को वसूल करने के लिए दीन को पासे पुष्ट डाल देते हैं और ये हमारा वतीरा आम तौर पर जिंदगी में रहता है। अगर किसी इंसान वनो दपोस कि हे फलान तिजारत या फलान असूल ये इस्लाम सत टकरावन, वो इस वक्त कहता है हाय वह मैंने बचन हंद करियर वनस वह क्या करो यहाँ पे करूँ, या इसी तरह से ज्यादा नफा कमाने के लिए या ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो सूदी कारोबार या बैंक से सूद या लोन लेता है। अमिस वन कि हो क्या मजबूरी है ये पन कारोबार अम असल गुजर अवकात गसन, इस्लाम तो इस बात से मना करता है। उस वक्त ये कहता है क्या करो ये मजबूरी, बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। उस वक्त वो दुनिया के हकीर मफादात को वसूल करने के लिए वो क्या करता है? इंसानस ईमान के बदले किसका सौदा करता है? वो कुफर को इख्तियार। बहरहाल वो लोग भी इसी जुमरे में आते हैं। अल्लाह ताला फरमान कि लन यज़ुरुल्लाह शैआ, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। अब बहुत ही वह आयत ये इंतहाई चौंका देने वाली आयत, और ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के लिए नाजिल की है और उस वक्त के मुनाफिक उनके लिए भी नाजिल की है, और ये आजकल के लोगों के लिए भी नाजिल की गई है जो लोग समझते हैं कि हमें तो दुनिया का ऐशत मिला हुआ है, हमें तो दुनिया की नेमतें मिली हुई हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह हमसे राजी है। अल्लाह ताला फरमान वला यहसबन्नल लज़ीना कफरू, हाँ काफिर लोग ये गुमान न कर लें, उनको ये धोखा न लगे, अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि जो डील जो मोहलत अल्लाह ताला ने उनको दी है ये उनके हक में बेहतर है। यानी काफिर अल्लाह की डील को, अल्लाह ने जो उनको मोहलत दी है उसको अपने हक में बेहतर न समझे। यह आयत मुतल्लिक़ मुफस्सिरीन लेखन ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कानून इमहाल इस आयत में बयान किया है। कानून इमहाल माना मोहलत देने का बयान। तो क्या को मतलब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कानून एक है। कानून ये कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई इंसान, जब कोई बंदा अल्लाह की बगावत करता है तो अल्लाह या तो उसको फिलफोर पकड़ लेता है, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला इस फिलफोर आप गुनाह पे क्या करन पकड़ करन। अगर ये सही सालिम बंदा होगा, अगर ये रुत इंसान आए और अगर ये अल्लाह पर वाकई ईमान रखता होगा, ये इस मुसीबत पर गौर करेगा कि मैं क्या इस अल्लाह तबारक व तआला ये मुसीबत, और अगर ये मुसीबत पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगा हाँ मैं उस पास कुन फलन जे गलती गमज, अगर ये इससे तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कहाँ की तरफ हिदायत, इसको सही रास्ते की तरफ हिदायत करता है। इसीलिए यम जन इंसान कुन सात मुसीबत यह जन इंसान कुन सात परेशानी ये अल्लाह की तरफ से एक किस्म की नेमत भी है कि ये इंसान को बाखबर करती है कि आपसे कहीं पर गलती हो गई है। तवै हदीस आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मोमिन को जो भी तकलीफ दुनिया में पहुंचती है, मोमिनस यस तकलीफ दुनिया में वातन अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से उसके गुनाहों को माफ करता है। अल्लाह तबारक व तआला से इस जरिए इनसे गुनाह क्या करन माफ, क्योंकि उससे कोई गलती, इससे कोई गुनाह हुआ होगा तो तकलीफ देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या करता है माफ करता है। इथे पठनस
अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा भला मत कहो, यानी यूजर बुखार का इस खतन या ताफ खतन इसको बुरा भला, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को जला देता है। एंड जरिए मोमिन सिंध गुनाह यवन क्या जाल, क्यों? क्योंकि जब मोमिन को तकलीफ पहुंचती है वो फौरन किसकी तरफ रुजू करता है? अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अच्छा, इसके बरक्स यूजर आसन च बागी तो सरकश बंद, जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है वो अल्लाह का इनकार करने लगता है। सह कारण अल्लाह तबारक व तआला सुंद इनकार। सह वनान हाय नऊज बिल्लाह मिन जालिक, वह ओसा खुदायस बु योत रूदमुत मे पे त्रोवनी मुसीबत, मे पे त्रोवनी परेशानी। वो गिले शिकवे करने लगता है, वो उस वक्त अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाता है। तो वजह इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको मजीद किन में गिरा देता है, सह मजीद अमिस गुनाहन मज गिराव। अच्छा, एक और मामला, एक अल्लाह ताला की सजा का तो एक कानून ये है, आख सजा हो कानून चाहिए कि अल्लाह फौरन पकड़ता है किस पर? गुनाह पर। दूसरी सजा जो अल्लाह तबारक व तआला गुनाह पर देता है वो इससे भी शदीद गुनाह, ये अतका सजा है। वो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रस्सी को ढीली कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से पाने राज त्रावन क्या, यानी वो इसे मोहलत देता है। और इसको कहते हैं उलमा शाह वनन, इसे अल्लाह की खुफिया तदबीर कहते हैं। अच्छा, अल्लाह की खुफिया, और शरीयत के टर्म में वनन इस्तिदराज। इस्तिदराज को कि जब किसी इंसान से गुनाह सरजद हो जाता है, अल्लाह उसके ऊपर अपनी नियामतों के खजाने या अपनी नियामतों के दरवाजे खोल देता है। यानी यह मजीद नियामत दिवन, यह मजीद औलाद मज दिवन बरकत, यह दिवन मालस मज बाज़ाहिर खुरर, ताकि यह गस ज्यादा खुद ज्यादा कत मज घर गसन और महव गसन यथ आसाइशन मज इब्तिलानस, और फिर अल्लाह तबारक व तआला यकबारगी इसको पकड़ लेता है। पछ अल्लाह तबारक व तआला इमिस फिल फॉर ये इमिस गुनाहन युंदी प्याला, गुनाहों का जब प्याला इसका भर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक ही आन में इसको पकड़ लेता। अल्लाह तबारक व तआला गस इमिस नजात मंग। इसी इमहाल और इसी मोहलत का बयान इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। अल्लाह तआला फरमान वला यहसबन्नल लज़ीना कफरू, हाँ काफिर लोग ये गुमान न करें अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि अल्लाह की मोहलत इनके हाँ या अल्लाह की मोहलत जो उन्होंने अल्लाह ने उनको दे रखी है ये इनके लिए बेहतर है। यानी काफिर मा करिन ये गुमान, काफिर मा समझिन ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने यस मोहलत उमन दिसमज छ ये क्या यहद खातिर रुस्त, ये क्या यहद खातिर बेहतर, नहीं ऐसी बात नहीं है। यानी यम जन काफिर अस, ये कुरान में सूरह मोमिनून यम साथ में पढ़ो वहां पर आयत नंबर 55 और 56 में आया है। यम काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों दिवन तान, अरे क्या अगर आपका दीन सही होता, अगर आपकी शरीयत सही होती, फिर अल्लाह तबारक व तआला हम पर कोई अजाब नाजिल करता। मगर इसके बरकस आप देखते हो कि हम दिन ब दिन फल फूल रहे हैं, हमारी तिजारतें तरक्की कर रही हैं, हमारी औलादें वो तरक्की कर रही हैं। बहरहाल सूरह मोमिनून पढ़ो इसे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला फरमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों से कह दीजिए आपके माल की बढ़ोतरी और आपके औलाद की बढ़ोतरी ये आपको कहीं अल्लाह से गाफिल न कर दे, ये अल्लाह की मोहलत है, अनकरीब अल्लाह आपको पकड़ने वाला है। गो ये गैस अगर कहीं पे अल्लाह तबारक व तआला यम नियामत आसन खोजमस, अल्लाह का शुक्र उस वक्त अदा करना चाहिए, और बीगर सहित इंसान रोजन कथ मज तौबा तकसीरस मज कि कहीं ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर खुफिया तदबीर का रास्ता या दरवाजा अल्लाह ने मत खोल दिया है। यही बात यहाँ पर कह रही। अच्छा, सूरह कलम जब हम पढ़ेंगे, इन साथ में सूरह कलम पढ़ो वहां पर भी आया है वो उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, हम इन काफिरों को ढील देंगे, हम उनको मोहलत देंगे। उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, बेशक हमारी खुफिया तदबीर जो है वो इंतहाई शदीद है। यानी जो तदबीर हम इनके लिए कर रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक और इंतहाई शदीद है। ये तंतिशिवन मान इवन काफिर, क्योंकि काफिर फूले ही नहीं समाते थे ओहद के बाद। यम साथ ओहद जंग को यमन गए बज़ाहिर आयमन कामयाबी अथ, और अबू सुफियान तो बड़ी डेंगियां मार रहा था उस वक्त कि नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक हमने मुसलमानों का काम तमाम कर दिया, चैलेंज देने लगा था मुसलमानों को, और मुसलमानों के हौसले भी उस वक्त पास्त हो गए थे। मुसलमान यम काफिर ये अब मुसलमानों को ताना भी देते थे, और यम काफिर अब्दुल्लाह इब्न उबई सं जमात मदीने पाक तुम ते मुसलमान दिवन तान वुश्ता अगर तोड़ गए वो तोमा गयो नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक रुसवाई, आपको ये हार का रुसवा ये मुंह मत देखना पड़ता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुनाफिकीन और काफिरों को कहा वला यहसबन्नल लज़ीना कफरू, ये काफिर लोग ये गुमान न करने अन्नमा नुमली लहुम, कि जो डील जो मोहलत अल्लाह ने उनको दी है
खैरुल लिअनफुसिकुम कि ये इनके हक में क्या है, बेहतर है, नहीं ये बेहतर उनके लिए नहीं है। इन्नमा नुमली लहुम, अल्लाह ताला पाने फरमाए इन्नमा नुमली लहुम, हाँ जो मोहलत हमने इनको दी है, लियज़दादु इस्मा, ये इसलिए दी है ताकि ये अपनी सरकशी में अपने गुनाहों में हद से बढ़ जाएं, ताकि यम बढ़न अत गुमराही मज अत सरकशी मज हद खो ज्यादा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला यक बारगी इनको पकड़ दे। अल्लाह ताला फरमाता वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और हकीकत ये है और आखिर अंजाम इन काफिरों का क्या है, वलहुम अज़ाबुन मुहीन, इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार। ये क्या आज मुसलमानों को कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपकी रुसवाई हो गई, ये क्या मुसलमानों को ताना देते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया है इसीलिए हम दुनिया में फल फूल रहे हैं, इसीलिए दुनिया में हम तरक्कियां कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला फरमान ये इसलिए हमने इनको डील दी है, ये मोहलत इसलिए हमने इनको दी है ताकि ये गुनाहों में, ताकि ये सरकशी में एक अजीम या एक लामहदूद हद तक चले जाएं। वलहुम अज़ाबु मुहीन, और इनके लिए कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने रुस्वा कुन अजाब ये जंचे तैयार करके रखा है। बहरहाल इस आयत में हमारे लिए भी तरबियत है। तरबियत ये कि अस गश्न काफिरन हिंज तरक्की वुशित, अस गश्न काफिरन हुंद जाहो हशम तो दुनिया यह जन तिहुंद दुनिया वुशित, तिहंज तरक्की वुशित, तिहंज बंगलो वुशित, तिहंज गाड़ी वुशित, अस गश्न दिलस मज यह गुमान गसन कि शायद क्या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदाय जिमे पसंद बुशनस त्रोमुत अत ना, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को क्या दी है, मोहलत दे रखी है, जो सूरह कलम में भी इसका जिक्र है, सूरह मोमिनून में भी है। ये इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोहलत दी है ताकि ये अपनी सरकशी में, अपने गुनाहों में हद से बढ़ जाएं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको पकड़ दे। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब क़यामत के दिन तैयार करके रखा है। एम पत ये जन अल्लाह तबारक व तआला फरमान पत आयत ये जन कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम क्यों बनाया है, यानी हम पे क्या खुदा अल्लाह ताला थवन कुन सातन बरकतन हिंद यम जन दुनिया खजान यलतान, इंशाअल्लाह उसकी क्या हिकमत है, उसकी क्या वजूहात हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। रब्बुल आलमीन से मांगो दुआ कि रब्बुल आलमीन दीन इस कुरान पाक पर अमल करो तौफीक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।